3.77 million in the year 2022 with a mortality rate of 0.32%, and India accounts for 27% of the global TB burden. And the most area of concern in this is the drug-resistant TB. To tackle these two diseases, a proposal was developed with the objective of ensuring the availability of hypertension screening to the last mile and ensuring the accessibility of drug-resistant TB testing. For this, it was eventually proposed to provide 2,000 BP monitoring apparatus to ASHA workers and their subsequent training, as well as the provision of two TrueNAT machines. And this is the main significant collaboration between the Tata Power Trust and District Administration Kathua. Now to move the program forward, I request Chief Medical Officer Kathua, Dr. Vijay Rena, to kindly address the gathering and give an introduction to the program. Please. Head Corporate Affairs, Mr. Anil Sahni, Manager Corporate Affairs, Mr. Sudhanshu Vardi, Member Tata Trust, and I definitely will miss Foreman Nagori ma'am. She was expected to come, but due to some flight issues, she's late. She's a worthy trustee, Community Development Trust. So, sir, really, I'm feeling privileged and proud to announce a significant collaboration with the Tata Power under the Corporate Social Responsibility Initiative. This collaboration initially was picked up in the May and June this year with an aim to address the growing health challenges posed by the both non-communicable as well as communicable, and particularly when focused on hypertension and tuberculosis. And the Tata Power Department has responded well by enhancing the capabilities of our health. वर्धा डिप्टी कमिश्नर हुआ, प्रिंसिपल सर, EDD सर, CMO सर, और जहाँ पे तशरीफ लाए हुए दूसरे ऑफिसर्स और दूसरे मुलाजमी व मीडिया पर्सन, मैं खास कर ये ट्रूनेट मशीन के बारे में भी थैंक यू करूँगा। सर ने बहुत हमें हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्प की है। तो ट्रूनेट का सर ये है कि हमारे जहाँ 2016 में पहली एक CV नेट लगी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ट्रूनेट मशीन का ये फ़ायदा है कि हम प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस कर लेते हैं। 2 घंटे में हम पेशेंट का टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये MDR है या इसको TB है या है नहीं, अगर है तो MDR है या नहीं है। तो सर एट प्रेजेंट हम 20% टेस्ट कर पा रहे हैं नेट टेस्टिंग, और प्रोग्राम कह रहा है कि आप 70% करो, लेकिन नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से ये हमारा जो इंडी डिस्ट्रिक्ट हैं जो सफ़र कर रहे हैं, और TB की इंसिडेंट्स कुछ कर पा रहा है। और ये हमारा प्रयास है, एज ए टाटा हमारा ये प्रयास रहता है कि हम समाज के लिए कुछ कर पाएँ। और खुशी इस बात की है कि एक रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री जहाँ पे टाटा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है, जहाँ पे हमने अपना कुछ प्रयास किया है, और हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि संजीव सर के गाइडेंस में कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य जिसमें टाटा कर सकता है, टाटा हमेशा उपलब्ध रहेगा। थैंक्स अगेन, डॉक्टर मिनाज। I'd like to thank Sanjeev sir for providing us this opportunity, and Minhaj sir for being here today. I'd like to also thank to give this opportunity to Tata Power to provide this public health intervention opportunity to us. And as sir told us that the problem of TB is rising in the district, and we get this opportunity to provide this basic infrastructure to the Kathua district. So we are thankful, since at Tata Power we believe in empowering the community as to the maximum extent we can. So thank you all for being here. नमस्कार आप सबको। संजीव सर जो आज यहाँ के हमारे मेन मुख्य अतिथि हैं और जिनकी वजह से हमने ये प्रोग्राम आज यहाँ पे रखा है, सुधांकर जी जो कि ग्रुप हेड है कॉर्पोरेट अफेयर्स टाटा पावर के, अनिल जी और सुधांशु। तो सारे हमारे यहाँ पे जो मेडिकल टीम हमारी यहाँ पे आई है, सभी सारे BMO, सारा मेडिकल स्टाफ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंसिपल साहब डॉक्टर अत्री और मेरे मीडिया के भाई जो यहाँ पे आए। ये मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे क्या टाटा पावर जो हमारी मदद कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की, उससे हम क्या करना चाहते हैं। हाइपरटेंशन जिसको कि नॉर्मल लोगों के लेमैन टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि BP बढ़ता है, BP की बीमारी है, वो हमारे देश में 30% लोगों को BP की बीमारी है। जो रिसेंट स्टडी हुई है उसमें 30% लोग BP की बीमारी के शिकार हैं जिनका BP नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। 30% को अगर हम नंबर के हिसाब से लगाएं तो इस कमरे में अगर 50 लोग बैठे हैं
तो उस 50 में से तकरीबन 15 लोगों को बीपी की बीमारी है, जिनको शायद पता भी नहीं है। अगर एक घर में 4 फैमिली मेंबर हैं तो उसमें से 1 या 2 को बीपी की बीमारी जरूर है। तो हमारे कठुआ में टोटल जो 5,10,000 लोग 18 साल से ऊपर की आबादी है हमारी, हमने ये संजीव सर के साथ उनका ही आइडिया से हमने डिस्कशन में इसको आगे लाया कि हम क्यों ना एक काम करें कि हम अपने सारे 18 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन है 5,10,000 लोगों को हम एक बार स्क्रीनिंग करें कि कहीं उनका बीपी नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में आजकल ये बीपी की बीमारी 18 साल के बाद ही शुरू हो जाती है। वो पहले वाला टाइम अब नहीं रहा जब 40-50 साल के ऊपर एक सीनियर सिटीजन वाली एज में ऐसी बीमारियां हुआ करती थी। तो ये एफर्ट टाटा पावर ने जो हमारा पूरा सपोर्ट इसमें किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये एफर्ट ये है कि उन्होंने हमें बीपी ऑपरेटर्स इस मात्रा में प्रोवाइड करे हैं कि हम हर ANM आशा वर्कर अपने मेडिकल सेंटर में मेडिकल टीम्स के पास एक बीपी ऑपरेटर्स दे पाएंगे जो घर घर जाके जितने भी हमारी ऐसी पॉपुलेशन 18+ उनका एक बार बीपी का स्क्रीनिंग करेंगे, ब्लड प्रेशर। उस स्क्रीनिंग से हमारे को ये पता चलेगा कि हमारी ऐसी कितनी पॉपुलेशन है जिसका बीपी नॉर्मल से ज़्यादा है और उनको इलाज की ज़रूरत है। वो इलाज कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग की बीपी कितना है, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो सकती है या वो दवाई शुरू करना हो सकता है। तो मेन मुद्दा इस बात का यही है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी के बहुत हानिकारक बीमारी है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वो अनडिटेक्टेड जाता है और उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो शायद ही कोई हमारे शरीर का ऐसा अंग है जिसपे वो, मैं डॉक्टर होने के नाते बता सकता हूँ, जिसपे वो असर नहीं डालता। आपकी किडनी से लेके आंखें, ब्रेन, हर चीज पे, ब्रेन स्ट्रोक होने का सबसे बड़ा कारण एक राइज इन ब्लड प्रेशर है। किडनी फेलियर खराब होने का भी कारण ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा रोल उसमें निभाता है। आपकी आंखों की रोशनी चले जाना, आपके रेटिना में प्रॉब्लम आना, ये सारा बीपी की बीमारी से, बीपी बढ़ने से होता है। और इलाज बहुत सिंपल है। आपको अगर पता हो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से या एक बीपी की दवाई खाने से आप उसको नियंत्रण में रख सकते हैं। उससे ज़्यादा इलाज इसमें नहीं है। एक ओरल मेडिकेशन ही आपको खाना है जो हर हमारे हेल्थ सेंटर में उपलब्ध है। तो ये चीज़ हम लोग जो है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ टाटा पावर एंड संजीव सर इसको हम शुरू करेंगे करना। इसके साथ साथ जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया, ट्यूबरक्लोसिस दूसरी बीमारी है जिसको हम लोग टैकल करेंगे कठुआ में। तो उसकी हमारे पास TrueNat मशीन टेस्टिंग की आई है और 2 घंटे के अंदर हम लोग ये बता पाएंगे कि टीबी आपको है या नहीं, जिसको पहले टाइम लगता था करने में, और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो उसको भी हम लोग बता पाएंगे। इसके साथ साथ अपार ग्रुप ने हमें 2 एम्बुलेंसेस यहाँ पे दिए हैं जो हम नीचे आपको अभी फ्लैग ऑफ करेंगे उनको। ये 2 एम्बुलेंसेस कठुआ के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा योगदान है। हम इन 2 एम्बुलेंसेस को, एक एम्बुलेंस को आज हम बनी भेजेंगे और बनी एरिया में उस एम्बुलेंस की वो यूज करेंगे और दूसरी एम्बुलेंस हीरानगर एरिया में। तो ये स्टार्ट ऑफ इनिशिएटिव्स हैं जो यहाँ पे आज किए जा रहे हैं। तकरीबन 60 लाख का खर्चा टोटल ऑलरेडी कमिटमेंट है जो टाटा पावर ने और अपार ग्रुप ने यहाँ पे किया है, जो कि हमारे लिए कठुआ के सारे निवासियों की तरफ से मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। टाटा पावर के पूरे टीम का, संजीव सर का, आप लोग सब यहाँ पे आए हैं एंड वी विल मेक श्योर दैट ये जो इक्विपमेंट हमारे पास आ रहा है इसको हम अच्छे से यूज करें और ये कठुआ के ओवरऑल हेल्थ केयर को बढ़ाने में इसमें योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you very much. I think a few months back when we met and we had discussion on this, so I came with the idea of hypertension screening, but you gave me the further 2 ideas in terms of tuberculosis and the ambulances. So I made certain promises to you. I hope we have been able to fulfill those promises. When I went back, I discussed with various partners, including the Tata Trust. So we have today with us, Sudhakar is there, Anil and Sudhanshu. He is the main person with whom we coordinated. He has not been able to come, he is in Delhi. But he just called me morning also, evening also, that आपने पहले नहीं बताया। तो मैंने वैसे भी कोई डिस्कस किया नहीं था कि मैं आ रहा हूँ,
और बातों बातों में डॉक्टर स्वामी से बात करके मुझसे निकल गया कि मैं यहाँ पे हूँ, जम्मू में ही हूँ. So then they said, why don't you come for this function? But thank you Tata Trust and thank you the district team. So it took bit of effort from my side to convince the Tata Trust and the people कि यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं. And I think he indirectly mentioned कि हम remote area के लिए कुछ करवा रहे हैं. So that shows that they in the beginning thought कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. So, but then I told them that we don't believe in working without the government. किसी एक संस्था को कोई थोड़ा बहुत दे दिया और बोलो कि वो क्रांति कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है. When it comes to each other institution at the village level, at the community level, there is no other institution except the government. आपका बहुत social commitment है, बहुत motivation है अपना. I have seen it in various parts of Maharashtra. You may be working only in 10 villages, 20 villages, 50 villages at the most. You are unable to work. You don't have that kind of privilege, that kind of resources to work at the grassroots level in all the villages, in all the districts, and that only government can do it because of two reasons. One is the human resource available with us. If you see, if you see and you look any village, आप किसी भी गांव में चले जाओ, at least 10 लोग होंगे जो गवर्नमेंट में बैठे हैं. So there is ANM, there is Asha worker, there is Anganwadi Sevika, then you have the Gram Sevak, you have the Patwari, then agriculture का भी है. Then उसके ऊपर I think here also you have Sarpanch, you have Gram Panchayat members also, they are also our partners. So you have at least 10 people, and if you are able to motivate them, mobilize them, you can make the difference. So that's why I believe that whenever you work for making any difference at the community level, you have to work through the government. And in that respect, I must appreciate the Tata Trust that they also realize this, that they work in close coordination with the government. Of course, they give something which probably government may not have. For example, if I ask you कि यहाँ पर 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया खर्च करके एक बहुत अच्छा कंसल्टेंट, बहुत अच्छा एक्सपर्ट रखते हैं, यू कांट डू इन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के अपने नियम हैं, अपने सिस्टम हैं, अपने सैलरी स्ट्रक्चर है, बट दैट दे कैन डू, एंड दैट्स व्हाट दे डू while working with the government. So they add up, they give those things to the government which the government is not able to do. But they work with the government. And so all good organizations, those who work in CSR, those who want to make difference, they work with the government. And that's why I also came and I requested Dr. Rakesh and all of you, including your CMO, Dr. Vijay, and your DMOs and other team members were very kind to respond. So then I thought, let us take up this initiative. Of course, there are other initiatives you can think of. For example, there is another very important area of working is maternal anemia. There is On behalf of the District Health Society, I welcome you all to this program. Now I would kindly request Deputy Commissioner Kathua, Dr. Rakesh Minhas, our Chairman and Managing Director of Maharashtra State Electric. Thank you, District Administration. Thank you, Deputy Commissioner Dr. Rakesh and his team.
CMO Dr. Vijay is there, all BMOs and all health department. कुछ महीने पहले जब मैं आया था यहाँ पे बात की थी, it was a very positive response from all of them. So then I went back and मैंने टाटा ट्रस्ट के लोगों से बात करके उनको रिक्वेस्ट की कि थ्रू CSR हमें डिस्ट्रिक्ट कठुआ में कुछ करना चाहिए. तो 2-3 आइडियाज़. वन ऑफ कोर्स के ट्यूबरक्लोसिस के लिए 2 नट मशीन्स, एम्बुलेंसेस, प्लस हाइपरटेंशन जो हाई ब्लड प्रेशर है जो कम्युनिटी में बहुत लोगों को रहता है लेकिन पता नहीं चलता, उसको डायग्नोज करने के लिए एक तो हमें BP ऑपरेटर्स देने चाहिए एट द कम्युनिटी लेवल, आशा वर्कर को, आंगनबाड़ी सेविका को, और दूसरा फिर उनके थ्रू जो है हम ये स्क्रीन कर पाएँ, ये पता लग पाए कि किनको हाइपरटेंशन है किनको नहीं है. सो आज हमने 1330 आई थिंक 1330 BP ऑपरेटर्स प्लस 2 टूनेट मशीन्स और 2 एम्बुलेंसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट को पहुंच गई हैं. आई एम लुकिंग एट द रिस्पांस ऑफ द टाटा ट्रस्ट एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सब लोगों का मुझे लगता है कि इसका बहुत उपयोग होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है 10 साल 15 साल जिनका हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, दैन दे लैंड अप इन कॉम्प्लिकेशंस. हार्ट अटैक आ जाएगा, किडनी की प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं ब्रेन में स्ट्रोक आ जाएगा. तो ये सब जो है वी विल बी एबल टू कंट्रोल. बट आई मस्ट टेल यू दैट दिस इज नॉट the end of our association. From now onwards, we will work in close coordination with the district administration, with the health department, with the education department and other departments as well. And यहाँ से जितना हमसे पॉसिबल हुआ हम सपोर्ट करेंगे थ्रू CSR एंड अदर इनिशिएटिव्स टू डू गुड वर्क इन हेल्थ. आप सबका धन्यवाद. थैंक यू सो मच. कदम रहने वाला है ये आज जो यहाँ पे टाटा ट्रस्ट ने पहल करी है, ये CSR इनिशिएटिव में एक बहुत बड़ी और अच्छी पहल है. तकरीबन 60 लाख का खर्चा आज यहाँ पे टाटा ट्रस्ट ने CSR में कठुआ जिले को दिया है. तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ टाटा ट्रस्ट से बहुत टाइम से हम लोग डिस्कशन में थे कि हेल्थ सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं. तो आज यहाँ पे हमारे को 2 एम्बुलेंस जो पार्क ग्रुप ने दी हैं, 2 ट्यूबरक्लोसिस टेस्टिंग की मशीन्स जो हमारे हॉस्पिटल में लगेंगी, और एक नया इनिशिएटिव जो हमने शुरू किया है कि 1300 BP ऑपरेटर्स हमारे पास यहाँ पे आए हैं. तो कठुआ के जितने 18+ लोग हैं, 5,10,000 लोग जो हैं, उनका सबका हम लोग एक बार ब्लड प्रेशर का टेस्टिंग करना चाहते हैं, देखने के लिए कि बढ़ता हुआ BP किसका है, और उसके बाद उनको इलाज पे डाला जाएगा. तो ये प्रक्रिया जो है हम अभी शुरू करेंगे जल्दी, अगले हफ्ते में. टीम्स घर घर पे जाएंगे और ब्लड प्रेशर का टेस्ट करेंगी. ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश में, भारत में 1/3 लोगों को 30% इंसिडेंस है जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है. 30% मतलब अगर 5 लोगों का कोई फैमिली है घर में, तो उसमें से 1 या 2 लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है. तो इतना इंसिडेंस होने के कारण, और बहुत सारे ऐसे केसेस में उनको पता नहीं चलता, ना वो दवाई ले रहे होते हैं. तो यही हमारी पहल है टाटा ट्रस्ट के साथ कि हमारे जो BP ऑपरेटर्स हैं, हमारे सारे वर्कर्स घर घर जाके उनका टेस्ट करेंगे. जिसका BP ज़्यादा बढ़ता है उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या जो दवाई या इलाज चलना है उस पर वो लोग उसको चलाएँगे. जो 2 एम्बुलेंसेज हमारे पास आज यहाँ पे आई हैं, उन एम्बुलेंसेज को, एक को एम्बुलेंस को बनी क्षेत्र में एम्बुलेंस जाएगी और दूसरी हीरानगर में एम्बुलेंस को यूज़ होगा. तो ऐसे CSR इनिशिएटिव हम लोग यहाँ पे अभी शुरू हुए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी बढ़ते रहेंगे, और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम आगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. कठुआ क्षेत्र में कई सारी इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप हुई. क्या देखते हैं आने वाले समय में CSR की रेशो कितनी ज़्यादा बढ़ेगी और कितनी सहूलतें कठुआ की आवाम को होंगी? ये भारत सरकार का जो CSR गाइडलाइंस हैं, वो मैंडेट करती हैं कि कोई भी कंपनी जो CSR के दायरे में आती है वो अपना 2% कॉन्ट्रीब्यूशन फंड्स का CSR को देगी. तो ये हम लोग सारी कंपनीज से अनुरोध भी करते हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं कि जितनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप हो रही हैं वो अपना CSR कंट्रीब्यूशन कठुआ में ही करें. और मेरे को पूरी उम्मीद है कि CSR के इनिशिएटिव से कठुआ में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हम लोग आने वाले टाइम में कर पाएंगे. तो क्या देखते हैं कि CSR के अंडर अलग अलग कैटेगरीज को जो फुलफिल कर सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने मेडिकल एड को लेकर दिया, और भी कई सारे सेक्टर रहते हैं. तो क्या लगता है जिला इंतजामिया किस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो देगी ताकि उस सेक्टर को और ज़्यादा अच्छा किया जाए? हेल्थ और एजुकेशन ही 2 सेक्टर हैं जिन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं. तो इन हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स में ही जो है हम CSR इनिशिएटिव से आगे काम कर रहे हैं. थैंक यू. सरकार से टाटा पावर की तरफ से सपोर्ट किया जाए. थैंक यू. देखिए, जैसे कि आज आप लोगों ने देखा जो टाटा पावर्स हमें जो डोनेट करे, डोनेशन आया CSR, जिसमें कि 1330 के करीब हमारे पास डिजिटल BP इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, और उनके अडेप्टर्स साथ हैं ताकि बिजली की मतलब ऑनलाइन सेल के साथ साथ ही बिजली पर भी चल सकते हैं. दूसरा हमारे पास TrueNet मशीन 2 आई और 2 एम्बुलेंसेस.
जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि देखिए क्या होता है, जैसे सर ने बताया 30% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी हाइपरटेंशन है, हर कोई घर नहीं पहुंच सकता। तो हमने ये डिसाइड किया है हम आशा वर्कर्स जो हर घर जा सकती है, ANM वर्कर्स जो बेसिक हमारे हेल्थ वर्कर है, उनको घर घर भेजेंगे और वहाँ पर वो जो मेन काम है कि अपने हर घर में BP चेक करेंगे, जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनका चेक करेगी, और जो भी हमें जिनका भी हाइपरटेंशन निकलता है, जो BP ज़्यादा निकलता है, उनको वो एक तो कहेंगी निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के पास भेजेगी और वहाँ तो ट्रीटमेंट भी दिला देगी। और उनके से और जो ये बेसिकली जो अनरिकॉग्नाइज जाते हैं, हमें अक्सर देखा जाता है हॉस्पिटल्स में, जैसे किसी की नस फट जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाती है, या आँख में रोशनी चली जाती है, या किडनी फेलियर हो जाती है। इसका कारण सिर्फ अगर ये वक्त पर हम इनको इलाज करें, इसको डायग्नोज करें, ट्रीट करें, तो ये चीज़ें आगे नहीं होंगी। तो क्या देखते हैं हमारा जो जैसे पहाड़ी इलाका है और जो बॉर्डर का एरिया है, कितना ज़रूरतमंद है? बहुत ज़्यादा। देखो हमारे पास ऑलरेडी BP सब कुछ है, मगर इस क्वांटिटी में कभी नहीं आया है, और इस क्वांटिटी से हम हर इंसान को हर हेल्थ वर्कर को एक सेट देकर उनको कहेंगे जो भी आपके आगे पीछे जिनकी एक्सेस है घर जाके उनको देख लीजिए। और मैं आपके माध्यम से टाटा पावर्स के डॉक्टर संजीव कुमार जो हमारे IAS है सनादो साल हीरानगर के यहाँ से, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँ टाटा पावर्स का, जिन्होंने इतना कुछ डोनेट किया है जो हमारे कठुआ के हेल्थ सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आने वाले 6 महीनों में आपको डिफरेंस लगेगा। बहुत ज़्यादा हमारे सिस्टम ट्यूबरक्लोसिस और हाइपरटेंशन के डिजीज़ हमें सामने दिखेंगे। थैंक यू सर।